Come on, speak up. What we had the last topic in last lecture. Yes, today we'll do the numerical. Before that, स्टीफेंस लॉ. स्टीफेंस लॉ में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दे दिया है वहां पे ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडी के लिए, where we had the formula that q which is equal to a sigma small t and t raised to 4. ये फॉर्मूला दिया है मैंने सबको. यस सर. ओके. अब गाइस एक और क्वेश्चन है स्टीफेंस लॉ पे जो इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कभी कभी न्यूमेरिकल फ्लक्चुएट होते हैं, तो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन आपको करना चाहिए. सो that derivation and then we'll move towards that numerical. Okay, isn't it everyone? Yes sir. Write down question. Using Stephen's law, obtain the expression for using Stephen's law, obtain the expression for the rate of loss of heat, for the rate of loss of heat, rate of loss of heat by a black body, by a black body in cooler surrounding, in cooler surrounding. I repeat, using Stephen's law, obtain the expression for the rate of loss of heat by a black body in the cooler surrounding. लिखा सबने? Yes sir. Continue question में continue करो. How is this expression modified? How is this expression modified if the body is not black? I repeat, how is this expression modified if the body is not black? मतलब दोनों ही कॉन्सेप्ट पे करना होगा, ब्लैक बॉडी में भी और ऑर्डिनरी बॉडी में भी. ओके, सुना सब लोगों ने? So guys, we'll go point to point. Write down first point in answer. Question लिखा सब लोगों ने? Question लिखा क्या सब लोगों ने? Yes or no? Yes sir. Write down first point. Suppose that a black body of a surface area. Suppose that a black body of surface area, capital A, surface area capital A, keep it in a bracket. I repeat, suppose that a black body of surface area capital A and absolute temperature capital T, and absolute temperature capital T is kept in cooler surrounding, is kept in cooler surrounding which are at lower absolute temperature. Sorry everyone, I repeat that point once again. Suppose that a black area in cooler surrounding which are at lower T naught, lower absolute temperature T naught. लिखा सब लोगों ने? Lower absolute temperature T naught. Done all? Done sir. Okay, right on next point.
from Stephen's law, लिखा सब लोगों ने, from Stephen's law, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, heat radiated by the body, heat radiated by the body per unit time per unit area. I repeat, heat radiated by the body per unit time per unit area is equal to, स्टेटमेंट के आगे लिख लो, इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4, सिग्मा टी रेज टू 4. लिखा सब लोगों ने? समझ में आ रहा है ना? स्टीफेंस लॉ का फॉर्मूला है, लिखे सबने? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एज इट्स सरफेस एरिया इज कैपिटल ए. लिख रहे हो सब लोग? एज इट्स सरफेस एरिया इज कैपिटल ए, कॉमा, heat radiated by the body per unit time, heat radiated by the body per unit time, heat radiated by the body per unit time. लिखे सबने? अब जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है आप लोगों ने, उसको इक्वल करके सेम फॉर्मूला यहाँ पे एरिया हाईलाइट किया हम लोगों ने, तो एरिया इंटू सिग्मा इंटू टी रेज टू 4, दोनों पॉइंट लिखे? Yes, sir. Okay, write down next point. Assuming the surrounding to be black, assuming the surrounding to be black, assuming the surrounding to be black, heat absorbed by the body, assuming the surrounding to be black, heat absorbed by the body per unit time per unit area, per unit time per unit area, again is equal to sigma T naught raised to 4. लिखे सबने? Yes or no everyone? Ankush? Yes, sir. Okay, next point में लिखो, heat absorbed by the body per unit time is equal to, heat absorbed by the body per unit time is equal to area sigma T naught raised to 4. T naught raised to 4. लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. Write down next line. Net heat lost by the body, net heat lost by the body per unit time is given by, net heat lost by the body per unit time is given by dq upon dt is equal to area sigma
इंटू टी रेज टू 4 मतलब फाइनल माइनस एरिया सिग्मा टी नॉट रेज टू 4. Okay, where area and sigma get common, so here will remain only t raised to 4 minus t naught raised to 4. लिख लो ये दोनों इक्वेशन. लिखा सबने? गाइज ये इम्पैक्ट होता है जब भी ब्लैक बॉडी को हम लोग कूलर प्लेस पे पुट करते हैं. अब सेम कॉन्सेप्ट होगा जब हम लोग उसको ऑर्डिनरी बॉडी से रिप्लेस कर देंगे. सपोज वी हैविंग अ ब्लैक बॉडी व्हिच शुड बी केप्ट इन अ कूलर प्लेस. So at that time, we should be having that types of formula, that dq upon dt, which is equal to area into sigma in bracket t4 minus t naught raised to 4. Suppose if the body is not black, write down in next line. If the body is not perfectly black, then if the body is not perfectly black, then इस फॉर्मूला के नीचे लिख लेना, if the body is not perfectly black, then same formula होगा guys, dq upon dt, which is equal to e a sigma t4 minus t naught raised to 4. Is it clear everyone? Where E is the emissive power of the surface of the body. याद रखना that E which is representing the emissive power. समझ में आ रहा है E क्या है? That is the emissive power. Okay, emissive power of the surface of the body. Emissive power of the surface of the body. Is it clear all? आयुष, मोहम्मद, Yes, sir. टर्म समझ में आए? Yes, sir. What about other? What about other everyone? Yes, sir. मतलब ये पॉइंट है कभी कभी इस पे भी डिपेंडेंट न्यूमेरिकल फ्लक्चुएट हो जाता है, तो आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग ब्लैक बॉडी को कूलर प्लेस पे रखते हैं तो उस टाइम पे उसमें क्या कंडीशन जनरेट होता है, तो इस टाइप के फॉर्मूलाज वहां पे क्रिएट हो जाते हैं. तो ये दोनों ही टर्म मैंने दे दिए हैं, ब्लैक बॉडी को रखने से क्या होता है और ऑर्डिनरी बॉडी को रखने से क्या होता है. इज इट क्लियर? स्टार्ट करें न्यूमेरिकल? हाँ सर कर दो. ओके, अगर हो सके तो एक बार चैप्टर देख लो. हाँ सर. थोड़ा फॉर्मूला समझने में इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं जब सब्स्टिट्यूट करूं तो आपको पता हो कि कौन सा फॉर्मूला एक्ट हो रहा है वहां पे. यस और नो? And if you wanted to start directly, so cool, we'll start. सर बोलो. सर आपने जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी बोला था ना सर, उसका एक बार नोट भेज दीजिए ना सर ग्रुप में. क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी सर, वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया सर सही. हाँ, तो तो आपने सर नोट भेज दिया ना. मोहम्मद नोट लिख के रखे हो ब्लैक बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक का, जो मैंने 4 पॉइंट आप लोगों को बताए थे.
that absorption which is equal to 1 and reflection and transmission which is equal to 0. Second point tha when a perfectly black body is heated, it emits radiation of all possible wavelength at that temperature. मतलब जो perfectly black body है, जब वो heat को emit करना शुरू करेगी, so which should be having the all the possible direction ranges. Third था wavelength ranges perfectly black body is independent of material and which is dependent on the temperature. यही 4 पॉइंट थे ना. सिंपली याद रखना, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू 1, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 0. सेकंड में ये याद रखना है आप लोगों की, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी था वो जब हीट को एमिट करता है, सो उसके रेडिएशंस सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में जाते हैं. उसके वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे और मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं होता. यही 4 पॉइंट है अंकुश. यस ये याद रखना था. ये देखो मैं ना मतलब काफी सारी चीजें हैं जो मतलब सिंपल करने के लिए दे रहा हूं आप लोगों को. कुछ पॉइंट अगर टेक्स्ट बुक में नहीं है तो भी चलेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कुछ हार्मफुल है. वो सिंपल हाँ, करने सर. के लिए दिया है मैंने. ठीक है. ओके सर. देखो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी जो आप लोगों को चीजें हेल्प करने के लिए रहेंगी. शायद आप लोग मेरे डेरिवेशंस देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक के डेरिवेशन से थोड़े लेंदी है. अब टेक्स्ट बुक में चीजें डायरेक्ट आ गए हैं, मैंने वो डायरेक्ट नहीं किया, मैंने उनको प्रूफ करते चले गया हूं. ठीक है. और बोर्ड के अकॉर्डिंग जितना मैंने दिया उतना लिखना ही है. टेक्स्ट बुक के जैसा लिख दोगे तो मार्क्स भी उतने शॉर्टकट में मिल जाएंगे. सर फिर टेक्स्ट बुक में छोटा क्यों देते हैं वो लोग को बड़ा देना चाहिए ना. अरे भाई वो टेक्स्ट बुक है. टेक्स्ट बुक में ऐसी बहुत सारी चीजें जो गलत होती हैं. अब इतना थोड़ी ना लेके बैठना है. टेक्स्ट बुक एक रेफरेंस है. आपका वो जैसा 10th तक था मतलब क्वेश्चन टिक कर देंगे, आप लोग लिखोगे, ऐसा नहीं होता. समझ रहे हो. ठीक है. अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग. चेक दिस न्यूमेरिकल, वेयर इज इट. सबके पास न्यूमेरिकल पेज है? हाँ या ना, कि मैं स्क्रीनशॉट निकाल के भेजूं? बोलो. आप लोगों के पास जो पीडीएफ होगा ना टेक्स्ट बुक का, उसके अंदर भी मिल जाएगा. स्टार्ट कर रहे हैं अभी न्यूमेरिकल. Compare the rates of emission of heat by a black body maintained at 727 degrees Celsius and 227 degrees Celsius. Let me know कौन सा न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल नंबर सॉरी 22 मिला सबको. 22. यस सर. Okay, let me know the given in it. First we having a two temperature over here, तो हम लोग उनको T1 T2 रख सकते हैं और दोनों को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे. राइट. यस सर. एक सेकेंड है, मेरे को 3 टेम्परेचर दिख रहे हैं इसमें. इफ द black bodies are surrounded by an enclosure black at 27 degrees Celsius, what would be the ratio of their rates of loss of heat? We having a 3 temperatures over here guys. एक इनिशियल है और 2 फाइनल है. ठीक है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं that T1 कितना था? 727 है. यस सर. डिग्री सेल्सियस में है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, तो 273. याद है ना 273 कैसे आया है? केल्विन ने दिया हुआ था. पूरी की पूरी स्टोरी सुना चुका हूं उसके ऊपर. टू 27 प्लस 273 इज इक्वल टू हाउ मच? 500 ना. आज क्या हो गया तुम लोगों को, सो रहे हो क्या? एंड हियर वी हैविंग इनिशियल टेम्परेचर. दैट इनिशियल टेम्परेचर शुड बी 27. So 27 plus 273. So it will become a 300 Kelvin. Yes or no all? बोलो हाँ. अभी इसी पे डिपेंडेंट मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं. स्टीफेंस लॉ, रिमेंबर.
तो स्टीफेंस लॉ क्या बोल रहा है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट मतलब dq अपॉन dt which is equal to area sigma into time. Yes or no? Yes Yes or no sir. all? And the Yes. fourth power of the absolute temperature. ये हमारा मतलब स्टीफेंस लॉ बोल रहा है। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है दो इक्वेशंस, क्या क्या कैलकुलेट करना है, क्या क्या Sir, कैलकुलेट करना है यहाँ पे? ratio loss of heat. रेशियो. ओके, वी नीड टू कैलकुलेट दी रेशियो। तो रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले दोनों को दो कंडीशंस में हम लोग रख लेते हैं। ये 1 हो गया, राइट। सेम कॉन्सेप्ट इसमें लिख लेंगे 2 में, dq अपॉन 2 हो गया, ये समझे? Yes sir, ratio. हाँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर में भी कॉन्सेप्ट होंगे, ये 1 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया सिग्मा T1⁴ समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा नीचे? एरिया सिग्मा T2⁴ सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? खाली T1 अपॉन T2⁴ मतलब 1000 डिवाइड बाय 500, राइट। 0 0 0 0 कैंसिल, और ये कितना होगा? 2⁴ तो 2 को रेस टू 4 16 करेंगे हम लोग तो 16 हो जाएगा, राइट। ये समझ में आया सबको? Yes sir. लिख लो यहां तक। लिखा सबने? Yes sir. रैप कर दूं? हुआ? व्हाट अबाउट अदर? Yes, Yes sir. sir. अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को एक डेरिवेशन करा है, मतलब अगर उसको कूलर प्लेस में हम लोग रखेंगे तो हीट को कितना लूज करेगा, राइट। ये भी रैप कर दूं? Yes sir. ओके। अब गाइस यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लेंगे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट वाला, सो dq अपॉन dt, राइट। तो हमारे पास जो अभी हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, क्या था? सिग्मा एरिया, राइट। और यहाँ पे T⁴ माइनस T0⁴ यही था। Yes sir. तो यहाँ पे दो टेम्परेचर है और दोनों का रेशियो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो सेम फॉर्मूला को लेके हम लोग चलने वाले हैं। सो dq अपॉन dt 1 डिवाइड बाय dq अपॉन dt 2 इज इक्वल टू, देखो सिग्मा और एरिया तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा खाली क्या? T1⁴ माइनस T0⁴, सेम कॉन्सेप्ट में T2⁴ माइनस T0⁴। ये समझे सब लोग? Yes sir.
क्या सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो क्या आप लोग? यस हाँ सर। या ना? निकाल सकते हो तो निकालो फिर फटाफट, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। If you done, then let me know, huh? गाइस इतना टाइम नहीं जाना चाहिए, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लाइक T1 मतलब कितना था, 1000 था ना, तो 10⁻³ रेज टू 4 माइनस T0 कितना था, 300, मतलब 3 × 10⁻² रेज टू 4 डिवाइड बाय T4 कितना था, कम ऑन स्पीक अप। T2 कितना था, 500। 500, ओके। सो 5 × 10⁻² रेज टू 4, सेम फॉर्मेट यहाँ पर भी, T0 3 × 10⁻4, राइट। अब सिंपली इनको सॉल्व कर लो, तो 10⁻3 10⁻4 इट विल बिकम अ 10⁻12, 3 × 10⁻8, नॉट 3, सॉरी, हाँ इट्स 81, क्योंकि रेज टू 4 है ना, यस और नो, डिवाइड बाय 5, 5 रेज टू है 4 है, इट मीन्स इट विल बिकम अ 625 into 10⁻8, okay, minus 81 into 10⁻8। अब यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करोगे तो यहाँ से 10⁻8 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 4 0 रहेंगे, ये सुनो एवरीबडी, माइनस 81 10⁻8 कॉमन हो गया, ओके, डिवाइड बाय 625, एक सेकेंड गाइस, स्क्रीन, $10,000 minus 81 into 10⁻8 upon 625 minus 81 into 10⁻8 कॉमन, तो 10⁻8 गेट कैंसिल। अब हो सकता है क्या, अब तो इजी हो गया ना, आया ना, आयुष, जयेश, ओमकार, महालक्ष्मी, मोहम्मद, अंशुल, अभिषेक, अफीफा, इमा, इमा कुरैशी, ओमकार, प्राची, रुतिका, विक्रम पत्रा, तौफिक,
रेशियो निकालो, you'll get your answer. Done all? कितना है आंसर? $18.24. 18.24, 24. not 24, right? Right है. What about others? इसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल दूं? Yes or no? Check this numerical. Where is it? A black body. Sorry guys. This one. A small black body, solid copper sphere of radius 2.5 centimeter is placed in an evacuated chamber. The temperature of the chamber is maintained at 100 degrees Celsius